start session 3 of chapter 2, acids, bases and salts. In this lecture, we are going to study about reactions of acids and bases with water and its different reactions. First one is acids and bases conduct electricity. We will understand this with the help of one activity. Before that, we'll go through some basics which we have already studied in previous lecture. In earlier class, we have seen that all acids have similar chemical properties. तो आई थिंक सेशन 1 में हमने देखा था कि जब भी हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे या ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर रखेंगे तो इट विल चेंज टू रेड कलर. Okay, so all the acids were having same property. When you add phenolphthalein to the acid, it changes, it gives no color actually. It means it is colorless. कोई भी color नहीं मिलता है. तो सब acids के पास same property होगी. So what leads to this similarities in the properties? कौन सी चीज है जो एसिड के अंदर सबको सिमिलर बनाता है? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids. Activity 2.3 में zinc granules and hydrochloric acids हमने ऐड किया था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था. वैसे ही हर एक एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. तो चेक करेंगे कि हाइड्रोजन है तो एसिडिक है या नहीं. Activity 2.8. Take solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. तो पहले हम देख लेते हैं क्या करना है, उसके बाद इमेज के थ्रू समझेंगे. Fix 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker. तो अभी हम इमेज में देखेंगे कि कॉर्क है, उसके अंदर हमने 2 नेल अलग अलग फिक्स किए. Connect the nails to the 2 terminal of 6 volt battery through a bulb and switch as shown in figure. मतलब जो डायग्राम में हम देखेंगे अभी. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. फिर हमें उसके बीकर के अंदर एसिड डालना है एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट स्टार्ट करना है स्विच ऑन करने के बाद. रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेम एक्टिविटी जो यहाँ पे हमने की है, ये सेम एक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया था, अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन and repeat the experiment separately with the glucose and alcohol solutions and note down that is what you observe. Now we'll see the activity. We have to take hydrochloric acid in one separate beaker. पहले रखना है. Then we have to take 100 ml beaker. Then you have to fix 2 nails 1 and 2 inside this rubber cork. ये rubber cork है. ठीक है, this is rubber cork. इसके अंदर डालना है. Now connect both 2 ends of this to the battery. एक ये end के साथ और ये एक दूसरे nail के साथ. Okay. After that you have to add HCl inside it. HCl. And after that you have to switch on. Okay, you have to on the switch. Slowly you will observe the change in the bulb. The bulb will start lighting slowly. What will be the condition from start to the end? We'll see in this
image. The next image we will see. The bulb will start glowing in the case of acid. Acid डालेंगे तो bulb glow होगा. What you will observe that glucose and solution do not conduct electricity. But you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. एसिड हमने डाला था HCl और फिर बाद में करंट स्टार्ट किया तो बल्ब ग्लो होने लगा. But when you will add a glucose and alcohol solution, bulb will not glow. It will not conduct electricity. Okay. Glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. जो बल्ब ग्लो हुआ मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. But if the bulb does not glow, that shows that there is no flow of electric current. As in the case of glucose and alcohol. ग्लूकोज एंड अल्कोहल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है और एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. The electric current is carried through the acidic solution by ions. तो जो एसिड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? आयंस के कारण. वो आयंस कैसे बनेंगे अब हम इमेज में थोड़ी देर के बाद पूरे एक्टिविटी का आपको स्टेटस दिखाऊंगा कि पहले कैसा होगा बाद में कैसा होगा. What was the reason that acid can conduct electricity? The reason is here. Acid contains H plus ions. Acid के अंदर H plus ions होते हैं as a cation. And anions such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 2 minus in S2SO4 and Ca3COO minus in Ca3COOH. तो ये सब जितने भी एसिड्स है सबके अंदर H प्लस आयंस होता है. HCl है ठीक है H प्लस प्लस Cl माइनस ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो HCl बनता है. ओके तो व्हेन दे ब्रेक आल्सो सपोज when HCl is given it breaks it will give you H plus plus Cl माइनस. वैसे यहाँ पे Cl माइनस एंड H प्लस HCl में मिला तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये आयंस सेपरेट होने स्टार्ट हो गए एंड ये आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रहता है. Since the cation present in the acids is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions that is H plus aqueous in solution which are responsible for their acidic property. तो सब एसिड्स के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो उसको एसिडिक बनाता है? तो सब एसिड्स के अंदर ये H प्लस आयन होता है जिसके कारण सब जिसके अंदर भी ये H प्लस आयन है वो सब के पास एसिडिक प्रॉपर्टी होगा. अंडरस्टूड? अब ये पूरे एक्टिविटी जो हमने देखी उसका ये आपको समझाता हूँ कि ये इमेज के थ्रू कैसे यूजफुल है. तो ये दो नेल्स हमने रबर कॉर्क में डाले थे ठीक है फिर बल्ब को कनेक्टेड किया था एक साइड बैटरी था. तो जब भी हमने अभी स्विच ऑन नहीं किया है तब तक ये आयंस नहीं होंगे. जो HCl है वो ज्वाइन ये एक HCl का मॉलिक्यूल ये एक HCl का मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन होंगे. जैसे जैसे हमने मतलब स्विच स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. तो ये पहले ये एक ये देखो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हुए फिर ये दो अभी भी बचे हैं तो वो और धीरे धीरे करंट पास होगा तो सब आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड एट दैट टाइम यू कैन सी पहले बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है थोड़ा सा ग्लो हुआ एंड यहाँ पे मैक्सिमम ग्लो हो रहा है. ओके so when the ions will keep on getting separated, the current will keep on flowing through the acid.
Repeating the same activity using alkali such as the sodium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो अभी हमने एसिड यूज करके किया, ठीक है, तो करंट फ्लो हुआ, ग्लूकोज में नहीं हुआ, अल्कोहल में नहीं हुआ, बिकॉज दे डू नॉट हैव H प्लस आयंस और हाइड्रोजन आयन। बट हियर व्हेन यू यूज अल्कलीज, तो अल्कलीज क्या होते हैं तो आपको समझा दूं, पहले भी समझाया है कि व्हेन यू मिक्स बेस इन वाटर इट गिव्स अल्कली, दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन सॉल्यूशन, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये अल्कली मतलब जो वाटर के साथ सॉल्युबल हो सकते हैं। We can conclude from the result of this activity, तो अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज किया है वो एक्टिविटी के अंदर, जो सॉल्यूशन है उसका वो HCl का सॉल्यूशन था, हमने यूज किया अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा, देख रहे हैं। We can conclude from the result of this activity that like acids, base also contain OH minus ions। एसिड के अंदर H प्लस आयंस थे, बेस में OH minus ion as an anion, and cations such as Na plus in NaOH and Ca2 plus in CaOH twice, which is responsible for the conduction of electricity। okay? तो यहाँ पे जो OH minus ion है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता रहेगा। तो एसिड्स के अंदर H प्लस आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, OH माइनस वो जो बेस में होते हैं तो बेस के लिए OH माइनस आयन होंगे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन दैट एसिड्स एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आंसर होगा कि एसिड कंटेन्स H plus ions which gives free electrons, which has free electron which will allow the electricity to pass through acid। Similarly बेस में OH minus ion होते हैं। Let us see activity 2.9। Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up apparatus as shown in figure। अभी हम फिगर में देखेंगे वैसे आपको apparatus सेटअप करना है। Add some concentrated sulfuric acid to test tube। वो टेस्ट ट्यूब के अंदर concentrated sulfuric acid ऐड करना है। What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? तो आपको ये सब करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद अ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसको आपको ड्राई एंड वेट ब्लू, ड्राई एंड वेट मतलब ड्राई और वेट दोनों से ब्लू कलर के लिटमस पेपर से टेस्ट करना है वो गैस को। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन से केस में चेंज होगा वो चेक करना है। On the basis of above activity, what do you infer about acidic character of dry hydrochloric gas and HCl solution? ये दोनों का हमें लिटमस पेपर से चेक करना है कि दोनों का एसिडिक कैरेक्टर है या फिर कोई चेंज है। इफ क्लाइमेट इज, ये एक नोट है, ये एक्टिविटी करते टाइम पर एक नोट आपको पता होना चाहिए कि इफ क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर ज्यादा है तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब मतलब जो ड्राई कर लेगा, जो गैस के अंदर मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। ये एक्टिविटी करने का इंस्ट्रक्शन था। अभी हम कैसे एक्टिविटी करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड किया। आफ्टर दैट ड्रॉप बाय ड्रॉप, आपको डायरेक्टली अंदर नहीं डालना है, आपको वॉल को टच कर कर, टेस्ट ट्यूब के वॉल को टच कर कर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 वो है सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपको ऐड करना है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको टेस्ट ट्यूब डायरेक्टली हाथ में नहीं पकड़ना है, यू हैव टू यूज पेयर ऑफ टंग्स टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ओके, आफ्टर सम टाइम you will find that a gas will come out, a gas is produced and it will come out of this tube।
एंड फिर वहां पे जो भी ये गैस मिल रहा है वो गैस क्या करेगा, सामने आपको ब्लू लिटमस पेपर रख देना है और मॉइस्ट लिटमस पेपर रखना है, मतलब गीला जैसा थोड़ा। तो दैट ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज टू रेड कलर, एंड रेड कलर का लिटमस पेपर होता है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दैट विल बी एसिड। तो जो एसिड बन रहा है वो होगा HCl गैस, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, NH2SO4, ये दोनों में से सोडियम क्लोराइड में से Cl एंड इसमें से H, वो दोनों मिक्स होके HCl गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो HCl गैस भी एसिडिक होता है एंड HCl सॉल्यूशन भी एसिडिक होता है। जो मॉइस्चर वाला एनवायरमेंट है तो हमें ये गार्ड ट्यूब, तो यहाँ पे गार्ड ट्यूब रख देना है, फिर यहाँ से जो गैस निकलेगा वो होगा ड्राई गैस। What happens to acid and base in water? Acid in water solution disassociate H plus ion। तो जब हम एसिड एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन, एसिड में से H प्लस आयन अलग होने लगेंगे। Let us consider the reaction between water and hydrochloric acid HCl। तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन करना है। HCl in presence of water produce H plus ion। जो भी यहाँ पे देखा कि एसिड इन वाटर सॉल्यूशन डिसएसोसिएट्स H plus ion, तो HCl भी एसिड है तो वो भी वाटर के साथ H plus ion प्रोड्यूस करेंगे। The these ion cannot exist alone। तो ये H plus ion जब भी होते हैं तो वो अकेले नहीं रह सकते। तो क्या होगा, they combines with water molecules and form H3O प्लस, इसको बोलेंगे H3O प्लस, उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। ओके, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो H3O प्लस, H3O प्लस, और प्लस ऊपर रखना है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। एंड द रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन दैट वी विल सी। तो HCl we know, H2O is water, when they react with each other, तो अकेला भी पता है कि हमें अकेला H प्लस नहीं रह पाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म H3O प्लस, मतलब यहाँ से जो एक H निकला था वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो ये H2 है वो क्या हो गया H3, एंड ये एक्स्ट्रा H प्लस आ गया तो यहाँ पे प्लस भी लग गया, एंड इसमें से क्या बचा, खाली Cl माइनस। ओके, सो ये था इक्वेशन, when acid reacts with water it forms hydronium ion। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो यही लिखना है कि what happens when acid reacts with water, तो ये आप सबको यही लिखना है, acid reacts with water it forms H plus ion, H plus ion do not remain alone, therefore they will form H3O plus, and फिर ये आपको एक इक्वेशन लिख देना है, this equation। ओके, hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule, वो भी हमने देखा। Thus hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or hydronium ion H3O प्लस। तो हमेशा कभी आपको ये भी एक ब्लैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाई हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो हमें लिखना है कि आंसर दे कैन नॉट रिमेन अलोन alone in the water, and it will there, and hence it will combine with hydrogen ion, this hydrogen ion will combine with the water and it will give you hydronium ion, or else when if you want to write in a symbolic form, जो symbolic form में लिखना है तो आपको H plus aqueous लिखना है, या फिर डायरेक्टली आपको आयन के फॉर्म में लिखना है तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस।
एंड ये है इक्वेशन जो हम लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन का सिर्फ। H प्लस हमें कहाँ से मिलेगा, कोई भी एसिड में से H प्लस मिलेगा। When this H plus reacts with water, we know that जो भी एसिड है बेस है वो वाटर के अंदर ही मिक्स होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में ही होंगे। तो when H plus mix with water, ये H plus जब H2 के साथ मिक्स होगा, क्योंकि अकेला नहीं रह सकता, it will give you हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेशन। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होने के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है, याद रखना है। We have seen that acids give H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when base is dissolved in water. ये एसिड ये देते हैं, ये आयंस H plus aqueous या H3O plus, तो what will base give us? Let us see. तो ये जो है एक रिएक्शन है। व्हेन बेस दैट इज NaOH, उसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम एंड OH जब होता है तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन मिक्स विथ वाटर और डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव Na प्लस। तो ये जो NaOH है, तो ये एक अलग आयन है एंड ये एक अलग आयन है। ओके, तो Na प्लस होगा और OH माइनस होगा, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, लाइक Na प्लस OH माइनस, और दोनों एक्वेस है, मतलब वाटर के साथ मिक्स होंगे। क्लियर है? दिस आर द अनदर एग्जांपल ऑफ बेस डिसॉल्व इन वाटर। KOH, तो K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, तो इट विल break, give you K plus and OH minus. Mg is magnesium, OH twice, it is hydroxide, magnesium hydroxide. When dissolved in water, this Mg gets separated और Mg का वैलेंसी है 2, तो Mg2 प्लस, जैसे कि यहाँ पे Mg2 प्लस एंड यहाँ पे 2 OH है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, यू कैन सी है, ये जो 2 है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखे हैं 2OH माइनस। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आप एक सब ये इक्वेशन में कॉमन देखो एक चीज, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। तो when acid reacts with base, it gives hydronium ion, and when base reacts with the water or mix or dissolves with water, it will give OH minus ion. Understood? Base generate hydroxide, that is OH minus ions in water. And bases which are soluble in water are called alkalis. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि when base dissolves in water, it forms alkaline solution. तो अब यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा कि जो भी बेस वाटर के साथ मिक्स होंगे उसको हम अल्कलीज बोल सकते हैं। ठीक है? All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. देखा अभी हमने, they are soapy to touch, bitter and corrosive. Okay, these are the properties of base actually, or you can say alkali. ये सेम प्रॉपर्टी बेस का भी होता है, बेस बीटर होते हैं। जो सोप है वो भी सोपी मतलब टच होता है, स्टिकी स्टिकी करोसिव नेचर है। नेवर टेस्ट फॉर और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। उसको कभी हम टच भी नहीं करेंगे, ठीक है, या उसको टेस्ट भी नहीं करेंगे, दे कैन हार्म अस। Now, as we have identified that all acids generate H plus aqueous and all bases generate OH minus aqueous, we can view neutralization reaction as given. जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके बेस के ऊपर हम कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो
ऐसा होता है, ऐसा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, वो हमें पता है। तो जो भी एसिड्स है, तो एसिड्स के अंदर H होंगे, ठीक है। ये X जो है वो कोई भी नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे M जो है वो कोई भी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड OH है वो हर एक बेस में होंगे, वो पता है। OH विल बी देयर इन ऑल द बेस, H विल बी देयर इन ऑल एसिड्स। तो H इंटू X मतलब X कुछ भी हो सकता है, MOH तो M कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड? बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड इजी इक्वेशन है, बट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो क्या होगा एक्चुअली, ये एच एंड ये ओ एच माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस है, ये दोनों मिलकर हमें वाटर देता है, एच ओ एच मतलब वाटर, ये वाटर देता है हमें, ओके। एंड ये एक्सएम जो है, दैट इज हम एम एक्स लिखते हैं। मेटल पहले हमेशा कोई भी फॉर्मूला लिखो, मेटल जो है तो मेटल सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है। एम एक्स, तो ये सॉल्ट है एंड ये है वाटर। acids plus base gives salt and water, understood? जब आयनिक फॉर्म में हमें लिखना है तो ये पूरे एसिड्स में से हमें सिर्फ आयनिक फॉर्म लिया है H प्लस का, ये बेस में से सिर्फ आयनिक फॉर्म लिया है हमें H माइनस, सिर्फ H माइनस लिखना है, ये हमें नहीं देखना है अभी, ठीक है। डोंट लुक एट दिस, H प्लस फ्रॉम एसिड, OH माइनस फ्रॉम बेस, ये दोनों जब ऐड होंगे तो दे विल गिव यू H2O liquid, okay. So this is how neutralization reaction between acids and base take place. Caution while adding acid to water. क्या क्या ध्यान रखना है जब भी हम एसिड एंड वाटर या वाटर के अंदर एसिड डालते हैं? The process of dissolving an acid or a base in water is an highly exothermic one. तो जब भी हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट देता है, हीट इवॉल्व करता है। तो क्या ध्यान रखना है? केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. बहुत ध्यान रखना है हमें, हमेशा हम always add acid to water, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम एसिड को ही वाटर के अंदर डालेंगे, एसिड टू वाटर, ओके। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद अ कांस्टेंट स्टिरिंग। थोड़ा एसिड डाला फिर स्टिर करो, थोड़ा एसिड डाला फिर स्टिर करो, ऐसे धीरे धीरे करके एसिड वाटर के अंदर हम डालेंगे। देखते हैं कि इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. तो जब हम उल्टा करेंगे, एसिड का बॉटल है उसके अंदर वाटर डालेंगे तो वो ब्लास्ट हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है, उड़ सकता है, जिसके कारण हमें इंजरी भी हो सकती है। The glass container may also break due to excessive local heating. तो जब भी एसिड है, एसिड के अंदर हम वाटर डालते हैं, नहीं डालते कभी, बट जब भी डालेंगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कोई बार सडनली, तो ग्लास जो एसिड रखा है हमें ग्लास के अंदर, वो ग्लास फट सकता है या बीकर फट सकता है या बॉटल फट सकता है। इसलिए हमेशा हम एसिड को ही वाटर के अंदर डालेंगे, वी विल नॉट ऐड वाटर टू एसिड, ये आपको खास ध्यान रखना है। लोकल आउट फॉर वार्निंग्स, सॉरी, look out for warning sign on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. तो ये सिंबल आपको बहुत सारे मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होंगे उसके ऊपर ये साइन दिखेगा आपको। मतलब ये क्या साइन दिखाता है कि जब भी एसिड हाथ के ऊपर गिरता है तो जल सकता है, होल्स हो सकते हैं,
ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाऊंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्पंज के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, या फिर कोई भी फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरता है तो वहां पे भी खड्डे करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डेंजरस वन। ओके, तो ये सिंबल जब भी है तो उसको एकदम सोच संभल कर यूज करना है। Mixing of acid or base with water results in a decrease in the concentration of H3O plus या OH minus per unit volume। तो ये जो प्रोसेस है एसिड या बेस को वाटर के अंदर ऐड करने का, तो वो क्या होता है कि जो आयंस है वो आयंस का कंसंट्रेशन कम करता है। तो आपने 1 लीटर वाटर लिया है, एग्जाम्पल लो तो ही समझ में आएगा। इफ यू टेकन 1 लीटर वाटर और एक के अंदर आपने 50 ml, सॉरी, हाफ लीटर 500 ml लिया है। अब आप दोनों के अंदर, दोनों बीकर के अंदर आप 10-10 ml एसिड डाल रहे हो। 1 लीटर बीकर के अंदर 10 ml एसिड डाला, 500 ml के बीकर के अंदर आपने एसिड 10 ml डाला। तो दोनों बीकर के अंदर ज्यादा आयंस कहाँ पे फॉर्म होंगे? पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो 1 लीटर का था उसके अंदर मैंने डाला 10 ml, और 500 ml जो था वाटर, इसके अंदर मैंने, ये एसिड का है और ये है वाटर का, तो उसके अंदर भी मैंने डाला 10 ml। अभी पर यूनिट वॉल्यूम करना है हमें, ठीक है, तो ये यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर, तो इसको मैं डबल करूंगा। ठीक है, तो ये भी डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ml पर 10 था फर्स्ट केस में, सॉरी 1 लीटर पर 10 ml था। तो जो 500 था उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो इस साइड भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 20 ml। मतलब यहाँ पे एसिड का जो कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना। तो जितना वाटर ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, तो जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? Such a process is called a dilution, and the acid or base is said to be diluted। तो जितना ज्यादा वाटर और कम एसिड या बेस, वो प्रोसेस से जो बनता है एसिड या बेस, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस आपने सुना होगा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वाटर कम, एसिड ज्यादा। एसिड ज्यादा मतलब H प्लस आयंस ज्यादा बनेंगे। आयंस ज्यादा बने मतलब एसिड का प्रॉपर्टी ज्यादा। बेस में ही वैसा, वाटर कम बेस ज्यादा, तो ज्यादा OH माइनस आयन बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, तो जो बेस होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब वाटर ज्यादा, एसिड कम। एसिड कम है तो आयंस भी कम बनेंगे, कम, तो इफेक्ट जो होगा एसिड का वो भी कम होगा। तो ये आपको समझना था, डाइल्यूटेड एसिड डाइल्यूशन। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड टू वाटर। हम वाटर टू एसिड नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज डेंजरस, एंड ऐसा कभी करते नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड टू वाटर to decrease the concentration of H plus ions per unit volume। And now we will see the effect of sulfuric acid on sponge। तो सिर्फ स्पंज पर हो रहा है, तो हमारे बॉडी पर गिरेगा तो इससे भी गंदा हाल होता है। ठीक है, तो विल सी, स्टार्ट होगा। देखो ये स्पंज, उसके ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ले लिया है, और देखो उसका हालत कैसा हो गया। इमेजिन इफ इट if a single drop of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid falls on our body, it will create a hole inside our body।
hole in your hand if it falls on your hand. Okay, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये एसिड्स का इफेक्ट, बट जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो बहुत डाइल्यूटेड एसिड होता है, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होता है, एसिड का बहुत ही कम क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट हम हमें नहीं करता है, कि हमारे हाथ के ऊपर भी गिरता है तो हम नहीं करेगा। ठीक है, that's it for this session. We are ending the session 3 here. In next lecture we'll study about pH scale and other things which are very interesting. pH scale is related to our daily life also. Okay, thank you and have a great day.